Hello friends, this is the lecture of class 8 subject maths exercise 13a. Means we will start today our next chapter, that is chapter 13 time and work. So first introduction, suppose A can finish a piece of work in 8 days. मीन्स एक कोई पर्सन हमारे पास जो 8 डेज में अपना वर्क फिनिश करता है, तो वर्क डन उस ए के द्वारा 1 डे में कितना किया गया, दैट इज 1/8. Clear? So on the basis of this part we will solve our sums of this exercise. Like suppose that the work done by A in 1 day, that is 1/6. It means time taken to finish the whole work is, that is 6 days. Means you have to reciprocal it. So general rules, it means suppose A can finish a work in n days, then work done by in A 1/n, and the work done by A in 1 day 1/n, then time taken by A to finish the work in n days. Clear? Now look at example. A alone can finish a piece of work in 12 days and B alone can do it in 15 days. If both of them work at together, how much time they will take to finish it? Means अगर A जो है वो एक वर्क को 12 डेज में फिनिश करता है और B अकेला उसको 15 डेज में करता है, अगर वो दोनों उसी वर्क को एक साथ करें तो कितने टाइम में वर्क फिनिश होगा? क्लियर? सो time taken by the A to finish the work 12 days, time taken by B to finish the work 15 days. So work done by A in 1 day, that is 1/12, and work done by B in 1 day, that is 1/15. So work done by A plus B in 1 day, it means that is 1/12 plus 1/15 is equal to, when you will solve it, like you have to take the LCM of 1/12 plus 1/15, and which is equal to, that is like LCM of 12 and 15, that is 60. So 12 5 ja 15 4 ja, it means that is 9/60. Clear? So work done by A plus B in 1 day, that is 3/20, but we have to time taken to complete the work. So time taken by A plus B to finish the work, we have to reciprocal of 3/20, that is 20/3. Solve it, you will get the result 6 2/3 days. It means when A and B both work together, it will be finished within 6 2/3 days. Clear? In 3 days. So next example, that is example 2. A and B together can do a piece of work in 12 days. मीन्स A और B दोनों मिलकर एक वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, B अकेला उसको फिनिश करता है 30 डेज में. हमें यह बताना है कि A अकेला उसी वर्क को कितने दिन में फिनिश करेगा. क्लियर? सो दैट इज टाइम टेकन बाय A plus B to finish the work, that is 12 days, and B alone finish the work, that is the 30 days. It means A plus B 1 डे वर्क. देखिए A और B वर्क को 12 डेज में करने हैं, तो 1 डे वर्क के लिए हम क्या करेंगे, 12 डेज का रेसिप्रोकल, दैट इज 1/12. सिमिलरली B 1 डे, दैट इज 1/30. क्लियर टिल हियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द A एज 1 डे वर्क. अगर हम दोनों के वर्क में से B का वर्क माइनस कर दें तो हमारे पास किसका आ जाएगा, A का आ जाएगा. सो 1/12 minus 1/30, take the LCM and solve it. When you will take the LCM and solve, you will get the result 1/20. So A alone can finish the work in 20 days, because we have to take the reciprocal of 1/20, that is in 20 days. Now example third, A can do a piece of work in 25 days, B finish it 20 days. Means A एक वर्क को 25 डेज में फिनिश करता है, जो B है वो 20 डेज में करता है. आगे क्या कहता है कि वो दोनों 5 डेज वर्क एक साथ करते हैं, फिर A चला जाता है उस वर्क को छोड़ के. हमें ये बताना है कि B अकेला उस रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में फिनिश करेगा. क्लियर? सो लाइक टाइम टेकन बाय A टू फिनिश द वर्क इन 25 डेज एंड टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क, दैट इज द 20 डेज. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द A 1 day work and B 1 day work. So it will become 1/25 and 1/20. Now both 1 day work, A plus B, add 1/25 plus 1/20, take the LCM, you will get the result 9/100. Now
स्टेटमेंट में क्या था देखिए, 5 डेज एक साथ वर्क करते हैं तो उनका 5 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो 1 डे वर्क था इसका 9/100, 5 के लिए क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाइंग, दैट इज़ इट विल बिकम 9/20। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 5 डेज जो वर्क किया था, जो डेज में वर्क किया था वो कितना था 9/20 कर लिया है। अब रिमेनिंग वर्क हमारे पास क्या रहा वो देखिए, 1 माइनस 9/20। एलसीएम टेकन, सोल्व इट, यू विल गेट द रिजल्ट 11/20। इसका मतलब ये हुआ जो 11/20 वर्क है वो अकेले बी को करना है। क्लियर। अब देखिए, अब बी क्या करता है, जो 1/20 वर्क है वो 1 डे में फिनिश करता है। तो 1 में कितना करेगा, लाइक अगर 1 में कर रहा है तो 1/1/20 हो जाएगा, तो 20 न्यूमरेटर में बन जाएगा, तो 20 आ जाएगा। इसने यहाँ पर वो लाइन मिसिंग कर रखी है, बट यू हैव टू शो दिस लाइन, सो इट 20। नाउ 11/20 वर्क विल बी डन बाय बी इन, सो मल्टीप्लाइंग 11/20 with the 20, cancel out, will get the result 11. सो जो रिमेनिंग वर्क है वो बी के द्वारा कितने दिन में फिनिश कर दिया जाएगा, 11 डेज में वो उसको फिनिश कर देगा। क्लियर। देखिए इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट को यूज़ किया है। अगर कोई भी पर्सन हमारे पास किसी भी वर्क को एन डे में फिनिश करता है तो हमें उसका 1 डे वर्क निकालना होगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे 1/n कर देंगे। यार ये उसका 1 डे वर्क आ जाएगा। अगर हम 1 डे वर्क निकाल लेते हैं और वो ये पूछा जा रहा है कि कितने टाइम में फिनिश होगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो वो n डेज आ जाएगा। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्लियर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ these sums you have to solve only 1 to 7 of exercise 13a in fair notebook. Clear. Just first 7 sums you have to solve in fair notebook. Clear. Thank you and have a nice day.